जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. I hope you can hear my voice. Yes, thank you so much. I hope you can hear my voice properly. If you have any issues and problems, please just put your remarks on the chat. Otherwise, my administrative team is going to handle you if you have any issues. So they are also talk in your group as well. So webinar group is there, so you can also mention any issues over there. So you can also chat over there, not here. So thank you so much for joining this seminar and webinar. First of all, I am very much grateful and thankful to the Muhammad Ali Jinnah University and the University of Lahore School of Accountancy and Finance, who basically have joined hands with us, with 3D educators, and provide us a chance that to give the elaboration and obviously the new era of the technology, which is the big data and data science by using the artificial intelligence. My name is Dr. Muhammad Shahir Waqar, and I'm basically a PhD in artificial intelligence and postdoc in cybersecurity. This is my profile. I have around 30 years of experience, almost for 35 countries in the field of the IT research and educationalist. So this is almost my profile, and this is our organizations. So just give me a brief introduction about the organizations, and then we can move further. First organization is 3D Educators, which is a training and development organization, and we have been providing the professional training and services from 1997. Almost 150,000 candidates have been trained with 500 international certifications, adjunct with 16 international bodies, and existence of in 4 countries in Pakistan, England, Somalia and Sri Lanka. Alhamdulillah, in Pakistan we have been trained so many professionals in different cadre. If you want to know what are the programs and what basically are offering, that's basically you can go for the 3deducators.com. Second, this program is also collaborating with other organizations as well. One organization you can see over here, this Tensor Minds. It's a research and development organization which totally works on the AI and data sciences products. Today I am going to show their products as well, that what we are actually developing. And another organization is the Perceptron Global. It's a UK based organization, and it's basically a marketing, the sales and partner of the Tensor Minds, and also offering the different products with respect to it. So let's begin. Just give me a small introduction of our team. Tensor Minds, the co-founder and the founder of the Tensor Mind is Syed Mansoor Ahmed. He is basically a CEO of the organization, main researcher. And another is Mr. Suhail, the co-founder as well, Chief Operating Officer, and Tawheed Khan is the co-founder of Chief Technology Officers. Please put your mic off. Please, everybody, I'm very much grateful to you if you can just put your mic off. Thank you. Another is the marketing and sales team's partner of the Perceptron Global. That's basically myself, Mr. Faisal Iqbal Siddiqui, and Saeed Ahmed Khan, who is basically almost running the shows in Pakistan, and I'm also in UK. The UK team is Qasim Masood and Sajid Ditta, obviously. So everybody basically, we have around 25 to 30 years of technology rich experience in the different cadre. Now come to the main point, that what actually we are going to talk about. टेक्नोलॉजी, दिस इज एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, एवरीबडी नोज, आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी एक
इस वक्त ऐसा रेवोल्यूशन हमारे यहाँ लेकर आया हुआ है जहाँ पर हम हर चीज़ में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हमारे ऑफिस हो, चाहे वो हमारा घर हो। हमारे काम के अंदाज को उसने चेंज कर दिया, चेंज आवर माइंडसेट्स, ठीक है ना। आज से 25 साल पहले शायद हर घर में ग्राइंडर नहीं होता था, लेकिन आज हर घर में ग्राइंडर है। आज से 25 साल पहले हर घर में वॉशिंग मशीन नहीं होती, लेकिन अब हर घर में शायद वॉशिंग मशीन है। एंड सेम एज लाइक so many things that we are going to involve। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ होती थी जो शायद कोई हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट वो कोई ऐसी चीज़ है जिसको हाथ लगाना वो मुश्किल है, लेकिन अब नाउ द पीपल आर यूजिंग लाइक अ डेली रूटीन थिंग्स कि भाई यार ये लैपटॉप है, ये गैजेट्स, ये हमारे फलां टैबलेट्स, हमारे सेल फोन्स, इन तमाम चीज़ें हमारी जो हैं वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होती चली जा रही हैं। एंड वी आर एक्चुअली यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ वेरी मच इफेक्टिवली, एफिशिएंटली इन एवरीथिंग। तो हम सब जो है वो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है वो अब बाकायदा तौर पर चेंज हो गया। और आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, हमारे वाले लोग हैं, वो शायद इसका बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनका माइंड सेट बिल्कुल वैसे ही है। तो टेक्नोलॉजी ने एक डायनेमिक्स को चेंज किया है। आप देख सकते हैं आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास इस वेबिनार के अंदर मोस्टली आप लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर बेसिकली लाइव ऑन फेसबुक in Pakistan, in Dubai, in Saudi Arabia, in Manchester. Everybody is watching that what basically we are talking about. So this is basically the like dynamics of the technology that we are using. So technology ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इनिशियली हम छोटी छोटी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करते रहे, उसके बाद वो हमारी ऑफिस की लाइफ में इन्वॉल्व हुआ। टाइपराइटर ने कंप्यूटर को रिप्लेस किया, कंप्यूटर ने टाइपराइटर को रिप्लेस किया, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि आज जो चीज़ें शायद हम उन चीज़ों से किया करते थे जो पुरानी टेक्नोलॉजी चीज़ों से मुंसलिक थी, अब वो नई चीज़ों के ऊपर, यानी कि ज़्यादातर वो कंप्यूटर ओरिएंटेड होती चली जा रही है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है वो अगर हम देखते हैं तो वो हमारे डेटा सेंटर्स हैं, हमारे टेक्नोलॉजी में सर्वर्स हैं, हमारे पास बाकायदा तौर पर सिस्टम्स मौजूद हैं, फिर नेटवर्क स्विचेस हैं, और वो हमारे पास और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है। सो पिन करेंगे, लोग पिन करेंगे। शेयर है, एक मिनट। आप लोग तमाम लोगों को प्रेजेंटेशन नजर आ रही है मेरी प्रॉपर? पीपल लोग तो कह रहे नजर आ रही प्रॉपर। अच्छा, मैं इसको रीशेयर करा देता हूँ। ये कहाँ से रीशेयर है? कुछ लोग कह रहे हैं उनको नजर नहीं आ रही। ठीक है, फुल स्क्रीन मैंने नहीं चलाई है। ओके, नाउ आई थिंक सो आपको बड़ी प्रॉपर नजर आ रही होगी प्रॉपर। अच्छा, जिन लोगों को नजर नहीं आ रही उनके पास एक पिन का बटन आ रहा होगा, वो उस पिन के बटन को क्लिक कर लें प्लीज। ठीक है, तो आपको प्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर नजर आ जाएगी। ओके ओके, सो हम जो बात कर रहे थे वो ये था कि हमने मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया कि क्या क्या हम जो है वो एक्चुअली कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्दर कि टेक्नोलॉजी ने एक अहम रोल प्ले किया और हमारी डायनामिक्स को चेंज किया और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। अच्छा, अब इस टेक्नोलॉजी से जो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास एराज गुजरे हैं, जो डेवलपमेंट हुई है हमारे पास मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, वो सबसे पहले तो हमारे पास ये कि जो भी चीज़ें हमने की इंफॉर्मेशन लेवल के ऊपर, वो चीज़ें हमारे पास जो हैं वो
हाफ स्क्रीन तो आई थिंक सो ये हाफ स्क्रीन आपके पास इसलिए आ रही है कि आप इसको पिन कर लें प्लीज। बाकी लोगों को आई थिंक सब नजर आ रहा है, आपको पिन कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। सो बात यह है कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी हैं जिसमें हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत होती थी। यानी कि कोई भी मैसेज अगर हम या कोई भी नोट हम आगे बढ़ाते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई अप्रूवल या कोई सिस्टम चलता है, तो वो जाहिर बात है कि वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर वो जो हमारे पास मुख्तलिफ साइकिल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में रन हो रहे हैं, विच रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल साइकिल, विच रिलेटेड टू दी सप्लाई चेन साइकिल, विच रिलेटेड टू दी सेल्स साइकिल, विच रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन साइकिल, तो वो सारे साइकिल्स को सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ हम लेकर आए। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमें इतना एम्पावर किया कि हम तमाम के तमाम जो डिसीजन थे हमारे फास्ट हो गए, और बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हुई होती थी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक, वो हम आहिस्ता 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 जो है वो उनको हमने जो गैप्स थे उनको कम किया। नाउ आफ्टर दैट कि जब वो चीज़ें हमारी मुकम्मल होना शुरू हुई, देन बेसिकली वी गो फॉर द इंजीनियरिंग साइड। और जो इंजीनियरिंग की हमने अपने सिस्टम्स की, हमने इंजीनियरिंग की अपने मेथड्स की, क्योंकि हमने बहुत सारे काम बड़े हम जो है वो बड़े कहते हैं ना कि बहुत लॉन्गेस्ट वे में जाके कर रहे होते थे। हम चीज़ों को बहुत स्लोली मूव कर रहे होते थे, किसी के प्रोसेस हमने बहुत डिटेल बनाए हुए होते थे। तो हमें देखने की ज़रूरत थी कि अगर एक काम को शुरू करके दूसरे काम तक हम जाके ख़त्म करते हैं तो उसमें कितना टाइम हमें लगता है। तो वो टाइम जो था वो ज़ाहिर बात है उसको कम करने के लिए वी गो फॉर द सिस्टम इंजीनियरिंग। और सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास जो प्रोसेसेस थे उसको कम किया गया, उसके अंदर रिवैम्पिंग की गई, उसके अंदर जो है वो कंट्रोल्स को जो है वो कम किया गया या बढ़ाया गया, जो भी सारी चीज़ें थी वो एज सच हमारे पास हमारे सिस्टम्स को और एफिशिएंट बनाने लगे और ज़्यादा बेहतर बनाने लगे। फिर हमने देखा कि हमारे पास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गई। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कहता है कि वॉट एवर लाइक द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, whatever the like the banks, you can say the FIs and other insurance companies, ये सारे लोगों ने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेट करना शुरू किया। एंड टुडे यू आर सीइंग लाइक एवरीथिंग इज नाउ बेसिकली इन योर हैंड्स, और आप अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप जो भी काम है वो उसके अंदर मूव कर सकते हैं। सो फाइनेंशियल लेवल के ऊपर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, वो भी एक रेवोल्यूशनरी लेवल पर लेकर आया। सो वी हैव नाउ गेटवेज, आप इजी पैसा और ये मुख्तलिफ जैज कैश वगैरह जो देख रही हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वो हैं जो कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम हो रही हैं। नाउ द इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की तरफ फिर हम आ जाते हैं कि वी हैव इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी में जहाँ पर हमारे पास इन चीज़ों के अंदर डिटेल लेकर आई, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी साइड के ऊपर जो इंडस्ट्री है हमारी, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की बड़ी सेंसिटिव और बड़ी ख़ास किस्म की मशीनें लगी हुई हैं जो अपना रोल एक प्ले कर रही हैं। नॉर्मली जैसे हम शीट मेटल वर्क में जाते हैं तो हमारे पास वहाँ पर जो है वो कटर्स भी होते हैं, वहाँ बेंडर्स भी होते हैं, वहाँ पर लेथ मशीन भी होती है, वहाँ शेपर मशीन भी होती है, वहाँ मिलिंग मशीन भी होती है, वहाँ ड्रिलिंग मशीन भी होती है। अभी सारी मैनुअल मशीनें जो हैं ये भी कन्वर्ट हो रही हैं कैड कैम मशीन्स के अंदर, विच इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। और कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मशीन्स, जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप सब कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर में करते हैं और वहाँ जाकर डिप्लॉय करते हैं, मशीन कैन परफॉर्म एवरीथिंग। तो ये एक बहुत डिटेल लेवल की साइंस इंजीनियरिंग है जिसके ऊपर दुनिया ने एक रेवोल्यूशन लेवल के ऊपर काम किया। और अब तो बाकायदा तौर पर इससे पूरे पूरे शिप्स बन रहे हैं, इससे घर बन रहे हैं और बहुत काम हो रहा है। ऐसे ही हमारे पास एनर्जी की डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी हुई कि हमारे पास जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो पावर एनर्जी की बात मैं कर रहा हूँ, जो पावर एनर्जी जो डेवलप हो रही है उसके अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा काम किया। एंड इन द वेरियस वेज वी आर मेकिंग द एनर्जी। अब आप देखेंगे पानी से एनर्जी तो आपने सुनी होगी, थर्मल आपने सुनी है, आपने न्यूक्लियर सुनी है, आपने सोलर सुनी है, विंड एनर्जी सुनी है आपने। तो इस किस्म की जो एनर्जीज है उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे वेज आ गए जिससे एनर्जी डेवलप हो रही है, और ये सारे के सारे काम जो हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और इफेक्टिव और एफिशिएंट होते चले जा रहे हैं। देन फाइनली जब ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई तो वी हैव रिक्वायर्ड सम इंटेलिजेंट सिस्टम्स टेक्नोलॉजी।
अब क्या हुआ हमारे पास कि हम एक एरा से गुजरते हुए आ रहे थे, हमने स्टेप बाय स्टेप पहले चीज़ों को ऑटोमेट किया, देन बेसिकली वी get the data from we give the instructions and get the data from there, and then basically we on that data basically we take the decisions, and then we can go further and move further the on the different side. तो आपकी जो बात है वो ये कि आपकी जो सिस्टम्स हैं अब उस लेवल पर आकर खड़े हो गए कि बाद जगह पे सिस्टम्स को डिसीजन खुद ले लेना चाहिए. व्हाई द ह्यूमन इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व, why the people should have to seek over there like what actually the problem and issues over there, and it has to be resolved by the human. Why should not the machine is going to be take the decision, and machine can resolve the issue, and machine can run by itself. So the system driven by itself, system run by itself, system can be resolved the solution by itself, and system can be also provide the efficiency according to its criteria. So that's basically we call it the intelligent system technology. And इस intelligent system technology के अंदर हम एक और एरा में दाखिल हो गए. एक्चुअली जब हमारी पास ये जो टेक्नोलॉजी का सिस्टम जो है वो हमारे पास आया है, तो इट्स बेसिकली we can say that it is started from the 1950s, like 1946 से हमारे पास ये एक टेक्नोलॉजी का समझ लें कि एक सैलाब बहना शुरू हुआ था, और वो इतना ज़्यादा नहीं था उस वक्त जो कि उसने बहुत फास्ट ट्रैक पकड़ा है. इट गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 70s, 75 एंड 80s, और 80 से लेकर 90s तक भी उतना फास्ट ट्रैक नहीं था जितना ज़्यादा 2000 के बाद से लेके अब तक है, और वो बहुत फास्ट है, और आने वाला इससे डबल ट्रिपल और 4 गुना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ एरा से हम आ रहे हैं. तो इन चीज़ों को हम कहते हैं कि बेसिकली वी हैव सम जनरेशंस. हमारे पास कुछ जनरेशन थी इन रेस्पेक्ट ऑफ हार्डवेयर, वी हैव अ जनरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, एंड दैट सॉर्ट ऑफ जनरेशंस, उन जनरेशन में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज आई, मुख्तलिफ किस्म की कैपेसिटी थी टेक्नोलॉजी की, उसका अपना एक एरिया था जिसको वो इक्विप कर सकती थी, संभाल सकती थी. उसके बाद उसमें आहिस्ता 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 जो है वो जिद्दत आती गई, एंड देन व्हाट वी हैव सीन कि आज हम सोच नहीं सकते थे वो काम हम कंप्यूटर से ले रहे हैं, वो काम हम बहुत सारी चीज़ों से ले रहे हैं. Obviously we only have a computer machine which is and which can be done these sort of things, जो कि हम सोच रहे थे कि भाई हमारे पास ये हो जाएगा और यही इंटेलिजेंट वर्क का पार्ट हम इससे जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं. लाइक सो अब दुनिया में जब ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स की बात आना शुरू हुई, यानी इफ वी आर गोइंग टू सी आवरसेल्फ, हम अपने आप को देखें कि हम डिसीजन कैसे ले लेते हैं, हमारा एक बेस लेवल क्या है, हम कैसे डिसीजन को लेते हैं, हमारे पीछे वो कौन सी एल्गोरिदम्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो हमें सिखाते हैं इस बात को कि हम इस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं. सो उस तरह की चीज़ों के हवाले से हमें जो है वो उन चीज़ों को गहराई में जाके सोचने की ज़रूरत थी. तो एक साइंस है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव इंजीनियरिंग या कॉग्निटिव साइंस, जिसमें बाकायदा तौर पर यह रिसर्च की जाती है कि फॉर एग्जाम्पल इफ सम ह्यूमन हैज गॉट get the training and some human is going to be understand, if some human is going to be observe, if some human is going to be like eat, तो ये कैसे कर लेता है वो, क्या उसके पीछे उसके पास कोई एल्गोरिदम है, क्या उसके पास कोई इंटेलिजेंसी लेवल है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द इंटेलिजेंसी एंड हाउ इट्स वर्किंग, हाउ इट्स बेसिकली बिहेविंग इन द ह्यूमन. ठीक है, हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं. तो हमारे लिए एक साइंस का आगाज हुआ जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, और वो साइंस का जो आगाज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन हमारे पास कहलाती है, जिसके अंदर इस वक्त दुनिया में बहुत काम हो रहा है. मैं आपको कुछ चीज़ें और आगे दिखाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है. बट ऑब्वियसली दैट सॉर्ट ऑफ थिंग जिसके अंदर हम जो है वो अपने मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाने जा रहे हैं कि वो ऐसे ही बिहेव करे जैसे कि एक ह्यूमन बिहेव कर रहा है. सो ऑब्वियसली पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि ह्यूमन कैसे काम कर रहा है. ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉग्निटिव लेवल ऑफ द ह्यूमन एंड हाउ इट्स बिहेविंग. एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर ह्यूमन, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल मैनकाइंड, कि वो किस तरह सोच रही है, क्या हो रहा है. सो ये उस हवाले से इंटेलिजेंट सिस्टम्स के अंदर दुनिया में काम होना शुरू हो गया. एंड इन दिस पीरियड ऑफ टाइम इसको दुनिया में बेतहाशा काम हो रहा है. अब जब ये काम होना शुरू हुआ
और जब इस तरह की चीजें आना शुरू की तो हमें पता चला कि असल में तो हम कोई इंफॉर्मेशन जब हमें मिलती है तो उस पर हम मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को जमा करके और उसको इक्वेट करते हैं, और उसको इक्वेट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन पर डिसीजन लेते हैं। तो नॉर्मली पता ही चला कि एक्चुअली जो डिसीजन है वो तो डेटा बेस्ड है, वो तो सारा का सारा जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड है, और अगर हम इंफॉर्मेशन की सही अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो वी कैन फाइंड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम इट। तो टेक्नोलॉजी जो है वो खाली अकेले इंटेलिजेंट बिहेवियर ऑब्वियसली एक साइंस है जो कि आप अंडरस्टैंड करें। जैसे कि मैंने कहा फॉर एग्जांपल यू आर वेरी क्लेवर, तो क्लेवर कैसे होता है आदमी, तो यू आर वेरी लवली, तो आप लवली कैसे होते हैं, मतलब इसका एल्गोरिथम होगा कोई पीछे, दैट यू कैन से यू आर वेरी लवली, यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी शार्प, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, you are very smart। तो everything like you are saying to that, तो वो आपका एक इंटेलिजेंसी लेवल इस बिहेवियर को मालूम करने के लिए इंटेलिजेंट सिस्टम्स की बात होती है। लेकिन जब डेटा आना शुरू हुआ और उस डेटा को आपने जमा करना शुरू किया, so according to that data and that sort of data, how you can analyze that sort of data, and उस डेटा से आपको क्या ट्रेंड्स मिल रहे हैं और उस डेटा से आप फर्दर क्या चीज प्रोसेस करेंगे, क्या क्या आप अपनी प्रोडिक्शन करेंगे, क्या क्या काम डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी। तो डेटा जो है वो एक और साइंस हमारे सामने आई। तो वी हैव डेटा साइंस एज वेल, वी हैव इंटेलिजेंट साइंस एज वेल। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू व्हाट इज लैंडस्केप्स ऑफ बैकग्राउंड्स, क्या है इसकी, व्हाट आर द बैकग्राउंड्स ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। यानी कि माई सेल्फ बेसिकली आई हैव स्टार्टेड रिसर्च इन 1999 ऑन द AI, एंड फर्स्ट टाइम मैंने जब एक्चुएटर 97 में बनाया था, रोबोटिक हैंड था, उसको मैंने सेंस करवाया, सारी चीजें करवाई, एंड आफ्टर दैट बेसिकली 1999 स्टार्टेड अप ऑलमोस्ट रिसर्च ऑन दैट साइड। तो मेरा एरिया था दैट इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क्स, एंड आई बेसिकली वर्क ऑन द फ्रैक्टल न्यूरल नेटवर्क। इन 2004 बेसिकली आई हैव कंप्लीटेड माय रिसर्च। उस जमाने में हमारे पास वी हैव मैनी एरियाज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्लीज आप अपना माइक बंद कर दें, आप प्लीज अपना माइक बंद कर दें। आप माइक बंद कर दें अपना प्लीज। जी सॉरी। अच्छा, अब बात यह है कि ना जो नेक्स्ट पार्ट आ गया वो ये है कि आपके पास जो है वो मैंने बताया कि देयर आर मैनी फील्ड्स ऑलमोस्ट इन क्या कहते हैं, उस जमाने में कोई 57 के करीब AI की फील्ड्स थी, मगर आफ्टर दैट जो है वो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता कन्फाइंड किया गया, चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता एक जगह किया गया, एंड नाउ बेसिकली देयर आर मेजरली 5 मेजर फील्ड्स ओवर हियर। आई हैव मेंशन 4। मैंने क्यों मेंशन किया मैं आपको अभी बताता हूँ, उसकी वजह है कुछ। सबसे पहले द विजन AI। विजन AI इज ऑब्वियसली आपकी समाज, आपकी जो है बसारत से रिलेट करता है, और विजन का जो हिस्सा है यानी देखने वाला पार्ट, तो एक एनालाइजेशन की गई है जो कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में कही गई है कि इंसान एक्चुअली अपनी जिंदगी का 70% पार्ट जो है वो विजन से अंडरस्टैंड करके और विजन से लर्न करके और विजन से ही बेसिकली वो जो ऑब्जर्व करके जो है ना वो लर्न करता है। सो विजन जो है वो आपका 70% एरिया को कवर करता है और 70% पार्ट जो है वो उससे वो चल रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर मशीन को भी इंटेलिजेंट बनाना है तो उस मशीन को इंटेलिजेंट लेवल पर देखने के लिए हमें मशीन को भी इक्विप करने के लिए उसका जो विजनरी पार्ट है उसको बड़ा ठीक ठाक लेवल पर अंडरस्टैंड करना होगा। अब इसमें बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। विजन की जो टेक्निक्स हैं वो बहुत सारी हैं, ठीक है, जिसमें आमतौर पर हम एज डिटेक्शन टेक्निक्स होती हैं, हमारी पैटर्न मैचिंग टेक्निक्स होती हैं, और फिर अब हमारे पास उसके एल्गोरिथम्स आ गए हैं जिसमें हम उसको मशीन लर्न भी करवा रहे हैं, और फिर उसको भी डीप लर्निंग मेथड्स हैं कि हम कैसे किसी जगह को दूर से देख के ये बता देते हैं कि बहुत दूर से हम देखते हैं और हमें बता देते हैं कि ये इतना फासला है, ये इसका कलर है, इसका टेक्सचर ऐसा होगा, इसकी एरिया इस तरह। तो हमारे पास इसका मतलब कि विजन जो है वो ऑलमोस्ट एक
मतलब एक हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। कंप्यूटर का विजन इज कैमरा, और उस कैमरे को ही आप इंटेलिजेंट बनाते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो काम कर रहे हैं कि कैमरा देखे और कैमरा देख के ही अंडरस्टैंड करे कि वो क्या हो रहा है। अब जाहिर बात है कि आपको अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की आंख दी है, आपको अल्लाह ताला ने जो है वो इतना फास्टेस्ट मैकेनिज्म दिया है कि वो आपके ट्रिलियंस ऑफ जो आपके इंटरनली न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली आपकी चीज़ों को देख के फौरन अंडरस्टैंड आप कर लेते हैं, और इवन दो कि आप देखते हैं और फौरन उसका रिफ्लेक्शन भी आप दे देते हैं, जवाब भी आप फौरन दे देते हैं, यानी आपकी ज़बान भी हिल रही है वैसे ही। सो ऑब्वियसली कि विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी हमारे कैमरे शायद इतने स्ट्रॉन्ग इस लेवल के नहीं है जितने स्ट्रॉन्ग लेवल की हमारी आंख है, मगर ऑब्वियसली द रिसर्च आर गोइंग ऑन एंड थिंग्स आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू इट, एंड मे बी in near future like in 1932 you will see that is going to be happen. Then we have a sound AI. Now in sound AI almost हमारे पास ऑब्वियसली जो हम सुन के बहुत सारी बातें समझ लेते हैं, और आपको अंदाजा होता है कि आपने कोई दूर से कोई ठक ठक सुनी, आपने कोई दूर से कोई आवाज़ सुनी तो आप फौरन पहचान लेते हैं, अरे यार ये इस चीज़ की आवाज़ है, ये खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट की आवाज़ आई है, वो बच्चा रो रहा है, ये इतनी दूर हो सकता है, ठीक है। सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग योर ईयर जस्ट इज गोइंग टू बी लाइक अंडरस्टैंड, एंड ऑब्वियसली आपका जो कान है आपको पता होगा वो 20 हर्ट्ज से लेकर 22 किलो हर्ट्ज तक काम करता है, और उसको सुनने के बाद आप कुछ डिसीजन ले लेते हैं फौरन और समझ लेते हैं। सो यू हैव लाइक विजन एआई कि आप विजन के साथ साथ जो दूसरा एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो है साउंड। तीसरा एरिया है नेचुरल लैंग्वेज एआई। नेचुरल लैंग्वेज जिसको एनएलपी भी कहा जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी कहते हैं। जो तीसरा बड़ा एरिया है उसमें क्या हो रहा है कि आप कुछ चीज समझ रहे हैं और समझने के बाद उसको जवाब दें आप उसी की लैंग्वेज में। मिसाल के तौर पर आप उर्दू समझ रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप इंग्लिश समझ रहे हैं, मिसाल के तौर पर फ्रेंच समझ रहे हैं, देयर आर लाइक मैनी लैंग्वेजेस इन 128 लैंग्वेजेस। तो हमारी जो टीम है जो उसने काम किया है ज़रा वो पूरा का पूरा 128 लैंग्वेजेस में नेचुरल लैंग्वेज का काम पे बात करती है। सो विजन लेवल पे जब हम काम करते हैं और साउंड पे हम सुनते हैं तो तीसरी चीज़ है कि हमें उसको जवाब देना है, हमें बोलना है। तो द वॉइस ऑफ द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन, अच्छा ह्यूमन की वॉइस में आपको पता होगा एक जर्क होता है, ह्यूमन की वॉइस में एक गैप्स होते हैं, ह्यूमन की वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है, ह्यूमन की वॉइस के अंदर बहुत सारे एरियाज हैं, जिसका लॉन्ग उसकी साउंड का जो एल्टीट्यूड है वो अलग होता है। तो ये सारी चीज़ों को नोट करके अकॉर्डिंग टू दैट उस वॉइस को जनरेट किया था कि वो कितनी नेचुरल है, वो कितना ज़्यादा आपके लिए अपीलिंग है। सो विजन साउंड एंड नेचुरल लैंग्वेज एआई जो है वो उसके हवाले से। देन यू हैव अ प्रेडिक्शन एआई। अब चौथा पार्ट ये है कि आपके नाउ यू हैव यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू विजन, थ्रू साउंड, through natural language, and you also have a data of your organization and you also have a different sort of information over there. अब उस पे रहते हुए how you can prediction in terms of future and prediction in terms of past as well, दोनों चीजों की मतलब आर्कियोलॉजिस्ट है फॉर एग्जाम्पल, उससे कोई चीज मालूम की वो जानना चाहता है कि कितने पुरानी है, ये कितने हजार साल पुरानी है। सो इट्स ऑल्सो अ प्रिडिक्शन बट इट्स अ बैकवर्ड प्रिडिक्शन, एंड इट्स प्रिडिक्शन आगे की इन डेटा पे रहते हुए आप ये अंदाजा लगा लें कि वो आगे क्या होने वाला है, क्या चीज चेंज हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड द प्रेडिक्शन एआई। पांचवा एरिया इसके अंदर जो मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि हम लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोटिक्स ऑब्वियसली क्या, रोबो मीन्स द ह्यूमन डिफरेंट मोबिलाइजेशंस, राइट। अब उसके हाथ है, उसका पांव है, उसकी गर्दन की मूवमेंट, उसकी हर चीज की जो इवन जो मूवमेंट है, सबसे ज्यादा हमारे हाथ इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे ज्यादा दुनिया में एक्चुएटर इनको कहते हैं हम आमतौर पर, ठीक है। तो हाथों का इस्तेमाल दुनिया में सबसे किया गया। फैक्ट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है हाथ बनाए गए, और एक ही जगह पे जहाँ पे 10 आदमी काम करते थे उनके 20 हाथ होते थे, तो उस जगह पे उन्होंने 50 एक्चुएटर आर्म लगा दिए, तो वो सारे काम करने लगे। वेरी फास्ट, वेरी इफेक्टिव, वेरी मच यू कैन एक्यूरेट, ठीक है, एंड प्रिसाइज एंड यू हैव लाइक एरर फ्री। तो इस तरह से हमें बहुत सारे फायदे होने लगे। तो रोबोटिक्स की जो पार्ट है वो ठीक है, आपका ये हाथ मूव करता है, चलता है, या आप अपना चेहरा हिलाते हैं, सब कुछ है, चल रहे हैं, पाँव चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये तमाम चीजें जो हैं ये काम कर रही हैं थ्रू ब्रेन, राइट। जो ब्रेन के अंदर आपके न्यूरॉन्स हैं
अब साइंस ये बाकायदा एक्सप्लोर कर रही है, क्योंकि आपका जो डीएनए है फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, साइंस ने उसको 100% एक्सप्लोर कर लिया है। देन दे आर गोइंग टू टेल यू कि आपके 7 नस्लों की माँ की और 7 नस्लों के बाप की इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में मौजूद होती है, एंड योर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंफॉर्मेशन। तो वो आपके पैटर्न्स को मालूम कर लेते हैं। एक्चुअली दिस इज ऑल इन बाइनरी। मजे की बात ये कि वो सारी की सारी चीजें बाइनरी में, और वो बाइनरी के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, और उसको साइंस ने एक्सप्लोर कर लिया। दैट्स व्हाई योर डीएनए कैन बी मैच्ड टू फाइंड इट आउट दैट हु इज योर लाइक फादर, हु इज योर मदर, एंड यू आर द रियल चाइल्ड ऑफ हिम। तो ये आजकल जो यार एक्सीलेंट्स होते हैं तो वो इस तरह से निकालते हैं, तो डीएनए से मालूम कर लेते हैं। लेकिन जो ब्रेन का कोड है दैट हैज नॉट बीन ब्रेन, इट्स स्टिल, और वो एक अलग यकीनी तौर पर एरिया से काम कर रहा है। यस, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग दैट आई हैव बीन फाउंड लाइक कि मुख्तलिफ चीजों के लिए मुख्तलिफ न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, और आपको पता है कि मुख्तलिफ साइटोप्लाज्म्स हैं, उसके क्रोमोसोम्स हैं, उनके डेंड्राइट्स हैं, उनके सिनेप्सिस हैं, तो वो मुख्तलिफ लेवल पर जाके काम कर रहे हैं। उनके वेटेज डिफरेंट है, इवन दो कि सम टाइम उनकी इक्वेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, और आप गैस नहीं कर सकते कि वो क्या काम कर रहे हैं, लेकिन काम सारा ब्रेन कर रहा है। ब्रेन के पास सारी चीजें, आपको शायद इल्म होगा, अल्लाह ना करे कि किसी के कुछ ऐसी बीमारी हो या आप जाके किसी पूछें, किसी को फालिज हो जाता है तो वो खाता है तो उससे वो निकला भी नहीं जाता। यानी अल्लाह ने आपको ये भी एक ब्रेन से हिस्स दी हुई है, जब आप खाते हैं और वो आपके अंदर जाता है तो वो भी आपको बताता है कि आप खा चुके हैं। इवन दो कि वो आदमी जिसको पैरालाइजेशन होती है वो खाता है, उसके पेट में जा रहा था, बट एक्चुअली ही कैन नॉट बी एबल टू फील बिकॉज दैट नर्व इज नॉट वर्किंग टू गिव द मैसेज टू दैट ब्रेन कि ये काम हो रहा है। तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन दिस इज द फैक्ट कि ऐसा है, और आपकी एक एक चीज जो है वो आपके न्यूरल सिग्नल्स पर काम कर रही है। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी चार चीजें काम कर रही हैं और हम सब चीज समझते हैं, देखते हैं। बट ऑब्वियसली द ब्रेन इज देयर, तो ये चारों चीजें आपकी ब्रेन है, ठीक है। बट एंड सेम एज आप चल नहीं सकते, आप मूव नहीं कर सकते, बट योर ब्रेन इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ सिग्नल। तो रोबोटिक्स या रोबो को एनी हाउ आपको सिग्नल्स देने हैं, उन्हें इंटेलिजेंट बनाना है। तो एक तो पार्ट है उसका जो उसकी बॉडी मूवमेंट है, चलना फिरना है, बट अनदर पार्ट इज इंटेलिजेंसी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स एंड द अदर बिहेवियर ऑफ द थिंग। तो उन तमाम चीजों को समझने के लिए आप जो है वो उसके ऊपर काम करते हैं। नाउ ये तमाम बातें समझने के बाद ये बात का तो अंदाजा आप लोगों को हो गया होगा कि लाइक जो है वो हमारे पास दुनिया जो चल रही है वो चल रही है हमारे डेटा पे। ये तमाम छोटी मोटी बातें अभी मैंने आपसे की हैं। तो डेटा इज द की टुडे, ठीक है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे पास इस वक्त दुनिया में मौजूद है, और लोग जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस निकाल के सिर्फ ये अखज़ कर रहे हैं कि नेक्स्ट 5 years के अंदर इस मुल्क में क्या चीजें हो सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू दी लाइक दी बिजनेसेस, विद रिस्पेक्ट टू दी लाइक एजुकेशन, with respect to the like population, with respect to the dimensions of the technology, और मुख्तलिफ चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं। तो जिसके पास डेटा है, और खाली डेटा नहीं बल्कि उसकी एनालिसिस भी है, यानी कि हमारे पास ये भी हो अंदाजा हो कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज, ओके, एंड हाउ बेसिकली वी कैन यू नो understand the dynamics of the data, and then we can analyze that sort of data and find out different trends, and maybe we can find out different competitive trends, और उसके हवाले से हम बात करें। तो we have a lot of data over here। तो हम जब कंप्यूटर की दुनिया में आए और हमने अपने पास डेटा इकट्ठा करना शुरू किए, तो बोलो आहिस्ता बोलिए, ठीक है। हमने जब कंप्यूटर की दुनिया जो है वो में आए तो हमारे पास उस वक्त इतना डेटा था नहीं जितना डेटा आज है, और डेटा कभी कम नहीं होगा, डेटा बढ़ता चला जाएगा, डेटा आगे से आगे होता चला जाएगा। तो जब भी हम आगे बढ़ेंगे, जब भी हम मूव ऑन करेंगे, तो एनी हाउ हमारा डेटा ऑर्गेनाइजेशन में कम नहीं होना है, वो बढ़ेगा। अब डेटा की मुख्तलिफ टाइप्स हमारे पास आ गई।
टाइप्स ऑफ डेटा में दो बड़े हमारे पास टाइप्स, वन वी कॉल इट द स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनदर वी कॉल इट द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, अच्छा, अब स्ट्रक्चर्ड डेटा किस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर द स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है कि फॉर सपोज योर ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिंग सम आइटम्स, राइट, तो जाहिर बात है कि कोई आइटम है तो उसका एक आइटम कोड है, राइट, उस आइटम कोड के आगे उसका प्रोडक्ट कोड है, ठीक है, प्रोडक्ट कोड के आगे उस प्रोडक्ट की प्राइस है, उसकी क्वांटिटी है, किसने उसको खरीदा वो उसका नाम है। नाउ अब ये फर्क करें 5 फील्ड्स लेट्स से हमारे पास है। सो नाउ इफ वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड दैट हाउ मेनी सेल्स ऑल टुगेदर हैपेंस इन अ डे, तो वो हमारे पास एक लिस्ट आएगी जिसमें सिनर्जी होगी कि यार ये हमारे पास आइटम कोड्स हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट कोड्स हैं, ये हमारे पास जो है उसकी क्वांटिटी है, ये हमारे पास उसकी सेल प्राइस है और ये लोग हैं जिन्होंने खरीदे। तो आज के दिनों में हमारे पास इतनी टोटल सेल्स हो गई, ये वही दिस कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, मैंने आपको थोड़ा सा एक स्मॉल एग्जांपल दी है, ठीक है, बड़ी एग्जांपल और भी सकती है, बट अनदर पार्ट इट लाइक वी हैव अ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज फार एज कंसर्न टू द स्ट्रक्चर्ड डेटा। मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग प्रेजेंटेशन बना के रख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग प्रपोजल्स बना के रख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग जो हैं वो यू नो के बहुत सारे इमेजेस रख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्राफिक्स की फाइल है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वीडियोस की फाइल है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कट्स हैं वहाँ पे लगे हुए, मुख्तलिफ आपने टैग किया हुआ है, इमेज फाइल्स हैं, वहाँ पे वेब फाइल्स हैं, यानी यू हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिफरेंट फाइल्स ओवर देयर, और सब ने अपने अपने फोल्डर्स में रखी हुई हैं या अपने लोगों ने डेस्कटॉप पे भी रखी हैं, लोगों के सर्वर पे रखी हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्ट्रक्चर लेवल का सिस्टम है तो उन्होंने सेंट्रलाइज रखी हुई है, बट ऑब्वियसली दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स ओवर देयर एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट डेटा। यू नो, अगर मैं कहूँ कि यार मुझे एक प्रपोजल बनाना है मुझे, ठीक है, विच आई एम गोइंग टू डेवलप फॉर माई क्लाइंट एंड आई नीड सम सॉर्ट ऑफ लाइक RFP डेवलपमेंट, तो वो फिर एक बड़ा काम है, मुझे करना पड़ेगा। इफ आई डोंट हैव एनी लाइक टेम्पलेट्स एंड डेटा ओवर देयर, तो मैं कैसे करूँगा? तो मुझे पता होना चाहिए कि यार वो मेन हेड्स क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, जिनकी बेसिस के ऊपर मैं ये सारे काम कर रहा हूँ। तो वी हैव स्ट्रक्चर्ड डेटा, बट वी ऑल्सो डू हैव लाइक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एंड these data, both data are highly important, and it is going to be complex due to like some reasons कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्कैटर्ड पड़े हुए हैं, वो बाद में हमारे सेटलाइज पड़े, लेकिन मोस्टली वो स्कैटर्ड पड़े हैं। सब लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, उनके पास बहुत अच्छा डेटा है। अब ये डेटा किस तरीके से हम काम में लाएं, कैसे इससे फायदा हासिल करें, कैसे इसको हम करें, तो वी हैव लाइक दिस सॉर्ट ऑफ sequential raw word excel powerpoint file pdf file simple text data image video voice data, ये सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल है। मगर क्या ये सारे डेटा को हम एक साथ एनालाइज कर सकते हैं? क्या ये सारा का सारा डेटा हमारे पास जो स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर है एक साथ हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। पहले ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन अब ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज वी कैन डू जो स्ट्रक्चर डेटा है उसके साथ वो जो अनस्ट्रक्चर डेटा है, इट्स बिकम नाउ बिग डेटा। ओके, बिग डेटा सिर्फ ये नहीं है कि आप ये कहें कि खाली एक पर्टिकुलर चीज इसके ऊपर आप कहें कि भाई ये जो है वो आपके पास जो है वो सिंगल एक लेवल के ऊपर चीज आ रही है और आपको जो है वो पता लग रहा है क्या है, मगर हमारे पास ये है कि हमारे पास एक जो है वो डेटा जो है वो ऑलमोस्ट मुख्तलिफ नौयत का है और उसकी वजह से वो ज्यादा भी होता जा रहा है और कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है। तो हमारे जहन में सिर्फ ये कि बिग डेटा सिर्फ वो ये जो टेराबाइट्स के अंदर सिक्वेंशियल डेटा है या वो इस तरह का डेटाबेस ओरिएंटेड डेटा है, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि हमारे पास वो डेटा जो अदर भी पड़ा हुआ है, रॉ डेटा सारा, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में जहां नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ वो डेटा, और प्लस इसके अलावा हमारे पास जो सिक्वेंशियल डेटा है डेटाबेस का, वो सब मिला के उसको हम बिग डेटा का नाम देते हैं। और बिग डेटा के अंदर हमारे पास फिर बहुत सारी चीजें निकल के सामने आती है। नो, अब इस डेटा का यूज जो है वो कहां कहां हो सकता है?
ठीक है, उसको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा, जैसे कि अभी हमने बात की, हमारे पास ज्योग्राफिकल डेटा है, साइंटिफिक डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है, पॉपुलेशन का डेटा है, सेल्स डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा है, वेदर और क्लाइमेट डेटा है। अब आप सोचेंगे ये सारा डेटा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इस डेटा से हम क्या क्या चीजें अखज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा कि स्ट्रेंथ क्या होती है डेटा की और कैसे काम कर सकते हैं। सो वी हैव सम प्रोडक्ट्स ऑफ द टेंसर माइंड्स, जिसकी हम आज बात करेंगे। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हमारे पास डेवलप्ड है, मगर हम आपको एक ही प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे कि वो प्रोडक्ट हमारी क्या कर रही है। ओके जी, इट्स वन ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट कर क्या रही है, व्हाट इज बेसिकली डूइंग द प्लैनेट स्कैन। डेटा की स्ट्रेंथ के हवाले से मैं आपको इस प्रोडक्ट के हवाले से कुछ चीजें बता रहा हूँ कि डेटा क्या कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो बेसिकली हमारी प्रोडक्ट है या इसके हवाले से जो हम काम कर रहे हैं, ये क्या क्या चीजें मालूम करके हमें दे रही है और इसके हमें बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि जो हमारे पास ये जो प्रोग्राम हम करा रहे हैं, दैट इज डिप्लोमा इन बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जो बिग डेटा का जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या क्या चीजें सिखा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसका प्रोडक्ट्स बन रही हैं उससे रिलेटेड मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि क्या हो रहा है और क्या 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 हो सकता है। नाउ दिस प्रोडक्ट इज प्लैनेट स्कैन, ओके, एंड GIS लेवल सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये प्रोडक्ट हमें सबसे पहले तो एक पॉपुलेशन दे रही है, ठीक है, यानी हमने क्या किया है, एक सैटेलाइट इमेजरी से ये प्रोडक्ट काम कर रही है। देन इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशंस, इट्स ऑल्सो प्रोवाइड मे बी ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द पीपल आर स्पेंडिंग, क्या लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं। कैचमेंट एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे, सेटलमेंट टाइप्स की भी हम बात करेंगे। सो सबसे पहले तो मिसाल के तौर पर मैं आपको जनरल सी बात करते हैं कि लेट्स से वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक KFC, मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा हट, वो कहते हैं यार कि हमें फर्ज करेंगे पाकिस्तान के अंदर एक और ब्रांच खोलनी है, ठीक है, या हमें पता चले कि हम आपस में कितना कॉम्पीट कर रहे हैं दूसरे से, व्हाट इज द सेल्स ऑफ द KFC, व्हाट द सेल्स ऑफ द मैकडॉनल्ड्स एंड व्हाट इज सेल्स ऑफ पिज्जा हट एंड हाउ मच वी आर एक्चुअली कॉम्पीटिंग विद ईच अदर। या मुझे ये पता लगे कि यार मेरी एक पेप्सी एक कोक है, इन दोनों में से ज्यादा कौन सी बिक रही है और ज्यादा बेनिफिट क्या है। तो अब मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस हैं यहाँ पे। एक तो ये बात करना कि मैं कोई नई ब्रांच खोल लूँ, मुझे डेटा चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पे नहीं है वहां खोलूँ, पहली बात तो मेरे ध्यान में ही आई। दूसरी चीज ये कि मैं एक दूसरे की कॉम्पिटिशन को देखूंगा, यार मेरा किस शहर में मेरा कॉम्पिटिशन है और कहाँ नहीं है, ठीक है। तीसरी बात ये कि मेरे ध्यान में आएगी कि अगर मैं कहता हूँ पेप्सी और कोक का मैंने आपस में मुवाजना करना है और देखना है कौन सी ज्यादा बिकती है, तो मेरे लिए कॉम्पिटेटिव एनालिसिस है, डेटा एनालिसिस है, सारी की सारी। अब बात यह कि कैसे अपने कस्टमर की प्रोफाइल को अंडरस्टैंड किया जाए, उस रीच तक पहुंचा जाए, उसकी डिस्पोजेबल इनकम के बारे में जाना जाए,
कैसे प्लान किया जाए फील्ड ऑपरेशंस को, बेस्ट बिजनेस प्लेस को, इंटेलिजेंट रूटिंग्स को विजुलाइज किया जाए, डिफरेंट जीआईएस लेयर्स को, और ऑब्वियसली अपलोड भी किया जाए मुख्तलिफ लेयर का डेटा। तो अब देखें कि क्या किया हमने इसमें। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आमतौर पर इस वक्त सबसे बेस्ट जो माना जाता है सैटेलाइट इमेजरी वो गूगल का माना जाता है। गूगल इस वक्त जो ऊपर से इमेजरी लेके दे रही है वो ऑलमोस्ट 500 स्क्वायर मीटर्स के तकरीबन अराउंड है, लेकिन ये जो ये प्रोडक्ट है हमारी दैट इज 250 स्क्वायर मीटर तक जाके आपको देती है। और जैसे मैंने बताया कि ये आपको मुख्तलिफ किस्म के बताती है कि आपके क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस आपकी क्या है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम, आपकी सेटलमेंट टाइप, मुख्तलिफ एरिया के अंदर स्लम्स भी होते हैं, बैंगलोर भी होते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी होते हैं, तो क्या क्या आपकी चीज़ें जो है वहाँ पर ज़रूरत है आपकी। तो एक तो ये कि आपको ये मालूम हो जाना कि यार ये पॉपुलेशन मुख्तलिफ जगहों पे रहती है और इनकी ये सेगमेंट है, इतने लोग जो हैं वो उनकी डिस्पोजेबल इनकम इतनी है, वो 10,000 कमाते हैं, कुछ लोग 25,000 कमाते हैं, कुछ लोग 50,000, इतने लोग कमाते हैं, इतने नंबर ऑफ लोग 2 लाख 5 लाख की रेंज में, एंड देन फाइन यू कैन द डिफरेंट रेंजेस ओवर इट। फिर वो लोग ज्यादा क्या खरीदते हैं, ज्यादा कहाँ जाते हैं, एक आदमी की ऑलमोस्ट इनकम कितनी है और वो कितना डिस्पोज करता है, खर्चा कितना करता है, ठीक है। और फिर वो आपका जो है वो किस एरिया में ज्यादा खर्चा करता है, यानी कि वो क्या खाने में ज्यादा खर्चा करता है, या वो शख्स जो है वो क्या कहते हैं उसको एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा करता है, या वो शख्स जो है वो जो खाने के है उसके अंदर वो क्या मतलब ज्यादातर वो फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जाता है, या उसकी फैमिली महीने में 2 दफा जाती है या 5 दफा है, व्हाटएवर, यानी उसकी ओवरऑल इनकम से भी अंदाजा लगाया जाए। अच्छा, अब उस इलाके में कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने 80 गज के घर हैं, 120 गज के घर हैं, 240 घर हैं, 500 गज, 1000 गज, 2000 गज के घर हैं, और कितने स्लम्स हैं, गरीब आबादी रहती है, कितने वहां पे पानी का निकास कितना हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना मिल रहा है, क्या क्या चीजें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ऑलमोस्ट आपको यहाँ से हमारे इस डेटा के बिजनेस मिल रही है। अब उसने कहा ये फर्ज करेंगे, उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा करें यहाँ खोल लें, इस इलाके में बड़ा जबरदस्त है ये इलाका, यहाँ खोल लें। अब उस इलाके में 2 रोड्स जा रही हैं, टू रोड्स आर ओवर देयर, और एक रोड के ऊपर अब इस तरफ भी जगह खाली है, इस तरफ भी जगह खाली है। अब ये तक अंदाजा लगाना कि भाई क्या रोड के इस तरफ खोला जाए या रोड के उस तरफ खोला जाए, दोनों में से किस तरफ खोला जाएगा कि जहां पे ज्यादा रीच होगी कस्टमर्स की, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं कैचमेंट एनालिसिस, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं कैचमेंट एनालिसिस, कि वो हमारे पास कौन सी चीज ज्यादा हो बेहतर आएगी। फिर इस तरीके से अगर रियल एस्टेट एनालिसिस करना हो तो वो भी आप देख सकते हैं कि वो रियल एस्टेट एनालिसिस क्या हो सकता है और क्या किस तरीके से होता है, ठीक है। देन वी हैव डिफरेंट मैप्स। अच्छा, वहां पर डिजिटल मैप्स हैं, आपने देखा होगा प्रोविंस वाइज तो देखा होगा, आपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखा होगा, यूनियन काउंसिल वाइज भी देखा होगा, लेकिन ये सारा जो है आपके पास डेटा के थ्रू ये सब हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये सारा डेटा है जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, यानी डेटा साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जो है वो ऑलमोस्ट यूज कर रहे हैं इस डेटा को, एंड वी डेवलप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं असल में आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में जरूर बता रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली एट फर्दर जो है वो आपको पता चलेगा कि डेटा की स्ट्रेंथ क्या है। मैं आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ डेटा की, और उस स्ट्रेंथ के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है, ताकि आपको जब भी पता चले कि अगर आप इसको समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं। सो मेरे पास रियल टाइम एग्जांपल है आपके लिए जो कि ऑलरेडी है। सो हम देख सकते हैं कि हमने एक पंजाब को उठाया, लेट्स वी जस्ट टॉक अबाउट द पंजाब। उसकी हमने एक हीट मैप लिया कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी लेफ्ट के ऊपर, मैं माउस बीच पे घुमा रहा हूँ, ठीक है। जहां पर आपको ये ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं, वहां पर आपको बेसिकली एक जो है वो
हीट मैप के तौर पर, डेंसिटी तौर पर नजर आ रही है। फिर हमने कहा चला लेट्स एक्सप्लोर लाहौर सिटी, हम एक लाहौर सिटी की तरफ चले जाते हैं और लाहौर को हम देखते हैं कि वो क्या कर रही है। लाहौर को जो आगे लगते हैं तो हमने उसका जो लाहौर का मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज है वो हमने जरा उठाया, तो हमने देखा कि लाहौर के अंदर जो आपको ग्रीन ग्रीन एरिया नजर आ रहे हैं, यानी आबादी हर जगह है। जहां पर आपको ये पर्पल कलर नजर आ रहा है ये बेसिकली आबादी का ही है, लेकिन जो मोस्ट डेंस एरिया है वो ये एरिया जो ग्रीन आपको रेड में नजर आ रहा है, रेड में पहुंच जाता है। एंड देन you can see how we are basically representing the data in terms of colors and their heat maps and their density level। तो आपको यहाँ डेंस पॉपुलेशन है वो कहाँ है। इस तरीके से व्हाट आर द रिटेल सेटलमेंट, अब आप देख सकते हैं कि कहाँ पर रिटेल शॉप ज्यादा है, किस किस इलाके के अंदर जो है वो रिटेल शॉप्स हैं, ग्रीन एरियाज क्या है, और उसकी फिर आप उसके डोमिनेटिंग एरियाज कौन कौन से हैं लाहौर के, जहां पर मुख्तलिफ रिटेल शॉप्स हैं और लोग ज्यादा वहां पर आते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू दी लाइक कंपटीशन कैटेगरी, कि हमारे पास कंपटीशन कहाँ ज्यादा हो रहा है, किन प्रोडक्ट्स, जैसे हमने अभी क्या कहते हैं कोक हैंडलर्स की बात की है, तो हमने उसके अंदर देखा कि हमने कहा चला ठीक है भाई लेट्स कम टू दी वन ऑफ दी और एरिया, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको कि हमने कहा जी लेट्स गो टू द मॉडल टाउन एरिया, और हमने कहा जी मॉडल टाउन एरिया के अंदर 351 शॉप्स हमारे पास आ गई। नाउ लाहौर के मॉडल टाउन के अंदर ये 351 शॉप्स मौजूद है, उन शॉप्स की हमारे पास प्रोफाइल मौजूद है। अच्छा, अब ये कैसे हमने पता, एक तो हमने ऑलरेडी जो है हमारे पास हमें डेटा बता रहा है सैटेलाइट इमेजरी का कि यहाँ पर ये सब कुछ मौजूद है। दूसरा हमारे पास जो कंपनी होती है उनके पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो हम एक डेटा की लेयर चढ़ा के उसके ऊपर, ठीक है ना, बता रहे हैं कि जनाब ये कंफर्म भी हो रहा है कि अच्छा भी यहाँ पर एक और मौजूद है। अब हमने कहा ठीक है जी कितना स्क्वायर मीटर एरिया है मॉडल टाउन का, हमने कहा जी 8 स्क्वायर मीटर एरिया। यहाँ पे कितने घर है, यहाँ पे 21,612 घर है। यहाँ पे कितने पॉपुलेशन रहती है, यहाँ पर इतनी ज्यादा, रिटेल शॉप 51 है, हाउस होल्ड शॉप कितनी है 62 है। उसकी एरिया का हमारे पास सारा कैटेगरी भी आ रही है, कितने कैटेगरी के लोग, A प्लस कितने लोग रहते हैं, A कितना रहते हैं, B, यानी हमारी जो जेंट्री है वो किस तरह की। एंड देन वी हैव अ पॉपुलेशन, लाइक रिटेल पॉपुलेशन हमारी के साथ। अब हमने देखा कि जनरल स्टोर जो है वो 31.1% जो है वो टॉप जनरल स्टोर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। और फिर जो कोक हैंडलिंग है वो 165 है, पीसीआई हैंडलिंग 164 है, इस एक्सक्लूसिव हैंडलिंग 49 है, इस तरह से यहाँ पर पीसीआई की 30 है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने यहाँ पे इसकी मजीद डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। तो बचला जनाब की जो ब्रांड प्रोफाइल है वो कैटेगरी के हिसाब से निकाली, तो बचला के अगर हम देखें तो 127 के करीब समझ लें डेली बेसिस पर को पेप्सी बिकी, तो 137 बिकी, 121 मिरिंडा बिकी और 135 जो है वो ड्यू बिकी। अब ये आपके पास एक नॉर्मल सी एक कैलकुलेशन आई है कि किस तरीके से आपके पास क्या है। अब मजीद इसको एरिया कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सारा सिस्टम के थ्रू काम हो रहा है, डेटा के थ्रू काम हो रहा है, और इस डेटा को हमें मालूम करने के बाद हमें सारी डीएचएल लाहौर और मॉडल टाउन का अलग अलग कंपैरेटिव हमें निकाल दिया। कहीं पर हमें ऑब्वियसली जरा ज्यादा एरिया किलोमीटर की बात होगी, कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन दोनों की कैटेगरी सेम है। ए प्लस सोशो इकोनॉमिक क्लास में ए प्लस और ए प्लस दोनों जगह मौजूद है, ए दोनों जगह मौजूद है, और तकरीबन वो नियर बाय से करीब है, लेकिन पॉपुलेशन साइज का बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर भी स्क्वायर किलोमीटर का बहुत डिफरेंस है, डेंसिटी का बहुत डिफरेंस है, लेकिन रिटेल जो यहाँ 321 है, 351 है, और आपकी सेल्स तकरीबन उससे ज्यादा हो रही है यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है। यानी इसका मतलब कि ये मार्केट ज्यादा प्रोडक्टिव मार्केट है। अगर यहाँ पर शॉप खोली जाएगी, यहाँ पर अगर केएफसी वाला खोल लेता है या यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स खोल लेता है, तो उसको ज्यादा बेनिफिट्स होंगे इन टर्म्स ऑफ अदर एरियाज अगर वो देखेगा। सुनाओ एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से कितने उम्र के लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी जो है वो इनकम जो है वो डिस्पेंस करते हैं वो कितनी है। फिर हमारे पास यहाँ पर ऐसे ही हमने फिरोजपुर और माल रोड का भी निकाला है कि वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर आपके पास डी और बी और इस तरह के मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग नजर आ रहे हैं आपको, और यहाँ पर उनकी सेल्स जो है वो पेप्सी कोक वगैरह की हैंडलर्स की डिफरेंट नजर आ रही है। अब बात ये कि हमें क्या हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे मल्टीपल एरियाज के ऊपर जाके कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ यार यहाँ से मुझे जो है वो इंग्लैंड की एनालिसिस दे दें, ठीक है, नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ डेटा आप देखें कि आई जस्ट हैव अ डेटा, और मैं यहाँ से बैठे बैठे पूरे
श्रीलंका की, मैं यहाँ से बैठे बैठे इंग्लैंड की, यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका की, उस एरिया के हवाले से मैं पूरी कल्चरल एस्पेक्ट के ऊपर काम कर सकता हूँ, निकाल कर सकता हूँ, और मैं बता सकता हूँ इवन दो कि ये कि मैं रोड एनालिसिस, रूट एनालिसिस भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि मैं उनको डिफाइन कर सकता हूँ कि किस तरीके से आप जो है वो मुख्तलिफ कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, अब यही सारी चीजें फाइनेंशियल लेवल के ऊपर आप जाके कर सकते हैं। ये आपको बैंक कहाँ खोलना चाहिए, किस एरिया में आपका एटीएम लगना चाहिए, ठीक है, आपको वहां पर क्या कहते हैं, मेरा कस्टमर जो है अगर वो इसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो कहाँ से आएगा, वो मिसाल नहीं इस रोड से आएगा, अगर इस रोड से आएगा तो कितनी देर में पहुंचेगा, इस रोड से आएगा तो कितनी देर में पहुंचेगा, उस रोड से आएगा तो कितनी देर में पहुंचेगा। तो ऑलमोस्ट अगर हम ये कहें कि हमारे पास वो एरिया कौन सा जगह होनी चाहिए जहां पे वो हर जगह से इजीली पहुंच जाए, गाड़ी में हो, मोटरसाइकिल में हो, पैदल हो, तो वो उसको कॉरिडोर लेवल पे आसानी हो, ठीक है, और अब हम उसको कैच कर सकें, उसका उस हमारे पास जो आदमी है वो हमारे पास आराम से उस जगह पे हमारे पास आ जाए, यानी कि एक ही एरिया के अंदर हम उसे बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो उसको दे दें। तो वी कैन प्रोवाइड फ्रॉम द डेटा कि हम उसके कमर्शियल एनालिसिस कर सकते हैं, हम उसके कंपेटिटिव एनालिसिस कर सकते हैं, हम उसके कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, हम उसके जो है वो कॉरिडोर एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज ओनली हैपनिंग विद द डेटा। अब कंपनी के पास अपना डेटा है, वो कहती है यार हमारे पास सेल्स का डेटा है, हमारे पास रिटेल का डेटा है, हमारे पास मार्केट रिसर्च का डेटा है, ओके जी ले आए आप, जगह कर लें, बिग डेटा बना लें, बिग डेटा बना के उसके कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें। तो एक तो ये कि मैं एक टूल भी ये काम कर रहा है, और साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाने के लिए कि डेटा से आप क्या क्या कर सकते हैं, डेटा से आपके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो एफएमसीजी हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, यहां तक ये तक हम आप बता सकते हैं, ये टूल बता रहा है, लेकिन मैं खैर जस्ट डिस्क्राइब कर रहा हूं आपको कि नॉर्मली हम एग्रीकल्चर में देखते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास 10 चीजें ऐसी हैं कि जो कि डिफाइन की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये आप देख सकते हैं कि एक लैंड है, ठीक है, अब इस लैंड के अंदर फॉर सपोज मुझसे वो कोई सब पूछता है, या एक किसान है या किसी की है, वो कहता है कि यार यहां पर क्या उगेगा बेहतर, क्या चीज यहां पे लगाई जाए। अब ऑब्वियसली आपके पास एनालिसिस के तरीके हैं, आप जाएं वहां, जाके वहां पे मट्टी उठाएं, उस मट्टी को टेस्ट कराएं, उस टेस्ट के अंदर आप देखें कि उसके अंदर कितनी पीएच वैल्यू है, उसका एनवीडीआई क्या कह रहा है, वहां पे क्या उग सकता है, ठीक है। सो जो है वो तमाम चीजों को एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक टाइम लगाना पड़ेगा, एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। लेकिन इफ यू हैव दैट डेटा, क्या आपको ये पता चल जाएगा ये डेटा आपका इस तरीके से सारा आपके पास है, तो आप इस डेटा के ऊपर एनालाइज करके उसी चीज को डायरेक्ट निकाल के दे सकते हैं कि जी यहाँ पर कौन पानी कितना होना चाहिए, यानी प्रोटेक्ट कर रहे हैं अब आपके, यार इतनी कल्टीवेशन होगी तो इतना पानी होना चाहिए, इतनी जमीन में ये चीजें होनी चाहिए, जमीन की पीएच होनी चाहिए, जमीन की फला चीज ऐसी होनी चाहिए। ओनली यू जस्ट नीड अ डेटा, जस्ट नीड अ डेटा कि आपकी क्रॉप कौन सी कितनी बेहतर लगेगी, कितना पानी चाहिए होगा, कितना उसको फला चीज चाहिए होगी। अच्छा, अब बात ये कि ये सारी चीजें किसी हद तक मैं समझ रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश की है आपको कि किस हद तक जो है वो कहानी हो सकती है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो आमतौर पर बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर ये बहुत सारे काम हम बीआई में भी कर रहे हैं, यानी बिजनेस इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, और मैं मना नहीं करूंगा कि वो नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट डेटा साइंस, बिग डेटा एंड एआई। ओके, तो एक बहुत जेनेरिक जवाब है मेरे पास इसका, और मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है कि नॉर्मली जब आप बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो जो डेटा आपके पास है वो सिक्वेंशियल होना चाहिए पहले तो, ठीक है। उस सिक्वेंशियल डेटा के ऊपर आप पावर बीआई लगा के या मुख्तलिफ किस्म की बीआई लगा के आप जो है वो अपने मुताबिक जो आप चाहते हैं वो इंटेलिजेंट लेवल का ट्रेंड उससे ले लेते हैं, जबकि एआई ऐसा नहीं कर रहा। अगर वो वाकई फुल स्ट्रेंथ एप्लीकेशन है, ठीक है, फुल स्ट्रेंथ एप्लीकेशन है जो कि बन रही है, बना रहे थे, हम बना रहे हैं और भी लोग बना रहे होंगे, ठीक है, अगर वो फुल स्ट्रेंथ एप्लीकेशन है तो वो फुल स्ट्रेंथ एप्लीकेशन जो है फिर वो आपको
सिर्फ ये नहीं बताएगी कि डेटा क्या कह रहा है, बल्कि वो आपको ऑटोमेटिकली बताएगी कि आपके डेटा में क्या गैप्स हैं। वो आपको जो है यही बताएगी कि आपके पास जो है वो ठीक है, और वो जाहिर बात है कि वो आपको बताएगी कि आपके पास जो है वो किस तरीके से जो है वो डेटा के हवाले से आपको इन डेटा पे अखज़ करेगी और डेटा के हवाले से आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें बताएगी। सो मैं असल में इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ कि एआई जो है वो आपके लिए डेटा को खुद बहुत सारी बातें करती है। अगर कोई क्वेश्चन है आपका, कोई सवाल है, तो वो मुझसे जो है ना वो चैट पे पूछ लें, और ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। प्लीज़ आप लोग अपना माइक बंद रखिए, तो सारे लोग जो है वो बहुत सारे इसके अंदर ज्वाइन हुए में, तो वो प्रॉब्लम में आएगी। एनी क्वेश्चन यू हैव आप मुझसे चैट पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो एक डिप्लोमा प्रोग्राम आगे हो रहा है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट प्रोग्राम, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें तमाम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। जी जनाब, किसी का कोई सवाल है? इसके जो कंटेंट है उस पर बता दीजिए। अच्छा, दो चार चीजें देखिए, पाइथन से ही शुरू होगा ये। कुछ लोगों ने पूछा मुझसे पाइथन, ऑब्वियसली एक लैंग्वेज है, हम एक जमाने में प्रोलॉग यूज करते थे, अब पाइथन आ गई है। पाइथन इज द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जहां हम उसको बच्चों को 5वीं जमात से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, तो पाइथन भी आप इसमें बिल्कुल सीखेंगे पूरी, और उसके बाद उसकी लाइब्रेरीज है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, वो सारा एरिया इसके अंदर कवर करेंगे। जो कंटेंट है वो अभी हम इसी जो ग्रुप है वेबिनार का, वो फुल अभी अगर अली ख्वाजा मौजूद है तो प्लीज़ उस पर डाल दें, आप पूरा जो कंटेंट है वो उनको दे दें, वो पूरा आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, और जो भी आपकी सारी चीज़ें वो बिल्कुल ये बेसिक से स्टार्ट होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल बच्चों की तरह स्टार्ट होगा ये, जिसको कुछ नहीं आता वो भी ज्वाइन कर सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत उसको थोड़ा सा कंप्यूटर आना चाहिए अच्छा चलाना, और प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर होता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी आता है इतना अच्छा, लेकिन कंप्यूटर के बारे में जानता है तो वो उसको कर सकते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ऑब्वियसली ये पेड कोर्स है, इसके बारे में आपको उस ब्रोशर के ऊपर नंबर आ जाएंगे, वहां से आपको मिल जाएगी सारी इंफॉर्मेशन। देखिए, मशीन लर्निंग जो है ना वो आगे की जो है वो सारी चीज़ें हैं, वो तो ऑब्वियसली हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। जब आप पहुंचेंगे तो डायरेक्ट मशीन लर्निंग पे तो आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन मशीन लर्निंग इसी तरीके से, जैसे मैं आपको एक जर्नल से बात करूं कि वो क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर आप किसी चीज़ को देखते हैं, आप पहली दफ़ा ही जो है ना वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं चीज़ों को, बिकॉज मेरा मानना कुछ और है कि आपके पास पहले से बहुत सारी इंटेलिजेंसी मौजूद है, लेकिन रोबोटिक्स को इंटेलिजेंसी का आइडिया नहीं है। तो रोबोट जो होता है उसको बार बार याद दिलाना पड़ता है। मशीन लर्निंग को हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं। तो हम इस सेशन में ऑब्वियसली जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो मशीन लर्निंग भी सिखाएंगे आपको, डीप लर्निंग भी सिखाएंगे, इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें होंगी। जी, एनी अदर क्वेश्चन? यस, बिल्कुल जॉब चांस बिल्कुल है जनाब। देखिए, आने वाले वक्तों में एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया कि ये बहुत बड़ी दुनिया है। यानी आप ये समझ लीजिए, अब तक दुनिया में जितना भी टेक्नोलॉजी में काम हुआ है 2020 तक, 2020 से लेकर 2030 तक जो है ना वो 16 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस है। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं देख सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी होगी। तो वो भी है हमारे पास, साथ में क्या कहते हैं उसको जॉब मार्केट भी है, ऑनलाइन जॉब भी है, फ्रीलांस जॉब भी है, और सॉफ्टवेयर हाउस की भी नीड है जॉब्स की, अगर आप वाकई में सही मानो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आप समझते हैं। देखिए, बाकी ये कि ये सवालात बहुत जो दूसरे सवालात हैं आप ना करें, इससे रिलेटेड बात कर लेंगे। हम अगर ये बात करते हैं कि हमारे पास जो है कि एआई के थ्रू हम डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज हर चीज़ की होती हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है,
लेकिन ऑब्वियसली इसमें फिर साइबर सिक्योरिटी का एक आंसर शामिल है, जो बहुत सारा लोग जो है उसको भी देख रहे होते हैं, तो वो भी पार्ट है एक इन्वॉल्व। सो ऐसा नहीं है कि एआई मैनिपुलेट कर देगा और किसी को पता नहीं लगेगा, उसके सिस्टम्स होते हैं, उसके ऑडिट्स होते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, तो वो पकड़ लिया जाएगा, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन करे चाहे वो मशीन करे। यस, एनीथिंग मोर? अच्छा, ये हमारा जो आज का सेशन है, वेबिनार है, ऑब्वियसली इसको हम लाइव हमने किया है, फेसबुक पे लोगों ने देखा है, और प्लस ये कि इसको हम रिकॉर्डेड भी वहाँ पे छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग सब लोग जो है वो उसको कर देख सकें दोबारा या किसी को रेफर कर सकें, तो ये वहाँ पे रिकॉर्डेड अवेलेबल भी होगा। यस, ऑब्वियसली हम आपको हाईलाइट कर देते हैं, हमारे ग्रुप के ऊपर ही सारी चीज़ें, अभी दोबारा से ब्रोशर्स आना शुरू हो जाएंगे, आप प्लीज़ वहाँ देखें। आपकी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप हैं तो आप वहाँ देखें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के लोगों ने, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के लोगों ने और 3D एजुकेटर के लोगों ने मिलके इस वेबिनार को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया है, और तमाम अपने अपने लेवल के ऊपर कोर्सेज जो है उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं। तो जो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ पे बात करें और वहीं पर एडमिशन लें। जो माजू के लोग हैं वो माजू में बात करें, एडमिशन लें। जो 3D के लोग हैं डायरेक्ट वो 3D में आके बात कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए बेतहाशा भाई ये प्रोग्राम यूज़फुल है, क्योंकि आने वाले वक्तों के अंदर फाइनेंस अकाउंट्स बिल्कुल उन लोगों की ज़रूरत होगी नहीं जो कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग पे काम कर रहे हैं। टोटली सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी अब BI के अंदर और AI के अंदर, तो सब कुछ जो है ना इस पर हो रहा होगा। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर तो आपको मैंने बता ही दिया कि कितना काम हो रहा है। डेटा जहां मौजूद है भाई वहां पर एनी हाउस की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत होती है कि हम क्या क्या चीज़ें आपको दे सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। आई थिंक में जो लोगों के कंसर्न सवाल हैं, कोर्स कंटेंट वो हम दे देंगे अभी वेबिनार के उसके ऊपर। जो लोगों के सवाल हैं कंसर्न के जो है वो जॉब मार्केट क्या है वो मैंने बता दी है। कोर्स का जो आपका क्या कहते हैं सीखने का अमल है वो आपको मैं बता दिया। एक लाइव मैंने आपको दिखा भी दिया है कि किस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही हैं मार्केट में और क्या क्या हो रहा है। सो आई होप कि लाइक आपको जो है इसके अंदर कुछ सीखने को मिला होगा थोड़ा बहुत, और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले वक्तों में आप सीखेंगे। तो इट्स अ चांस फॉर यू। हमारे पास अच्छे ट्रेनर्स हैं, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग हमारी यूट्यूब पर भी होगी और रिकॉर्डिंग जो फेसबुक पर भी होगी, मिल जाएगी। ठीक है जनाब। सो आई थिंक सो ऑल द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी कवर्ड। जी आकिब साहब, आप बाद में आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज का ये सेमिनार हम यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।